Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 32 and in the previous video we have studied about constitutional provisions of for safeguard the interest of the scheduled castes and scheduled tribes. Okay, and today we are going, and also we studied about article, important article 15, article 17 and article 46 and also article 275. Okay, so remember all the articles very carefully. Questions may be come from this article also. Okay beta, so be careful. And now let's start our today's topic, that is government efforts in making specific laws and policies for the upliftment of the scheduled caste and the scheduled tribes. Okay, and then after we will study about the scheduled caste and the scheduled tribes Prevention of Atrocities Act 1989. Okay, so let's see here. In pursuance of the above constitutional provisions, certain steps had been taken by the government for the welfare and upliftment of the weaker sections of the society, especially the scheduled caste and scheduled tribes. And you have seen that while persuasion means आपने देखा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को का पालन करते हुए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, स्पेशली द वीकर सेक्शन जो कमज़ोर वर्ग हैं ऑफ द सोसाइटी। स्पेशली कौन कमज़ोर वर्ग है? स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके बेटा, some jobs under the government are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes. We have seen that some jobs are already reserved for the scheduled caste and scheduled tribes. Percentage of job seats 15% for the scheduled caste and 7.5% for scheduled tribes. Some seats are reserved for them in the educational institution also, and also they are getting some reserve seat. उनके लिए एक रिजर्व सीट होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी फील्ड में या मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में या अदर फील्ड में उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए सीट रिजर्व रहती है कि हाँ उनको इतना मार्क्स मिलेगा तो उनका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। Third, some constituencies of the Lok Sabha and the state assemblies are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes. And also in constituencies आपने देखा होगा इसमें भी कुछ सीट्स रिजर्व होते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। From these constituencies only a scheduled caste or scheduled tribe conduct can contest the election. और उस एरिया से वही प्रत्याशी उस मतदान केंद्र से, या कह सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। कौन? जिसके लिए सीट रिजर्व। और रिजर्व किसके लिए है? यस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। कोचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर वेरियस competitive examination to improve the representation of SCs and STs in various services. And also you have seen that so many training centers also running for the competitive exam, especially to improve the representation of these scheduled caste and scheduled tribes. Okay, in various services, not only in one service but also in various services. Fifth, providing textbooks to scheduled caste and scheduled tribe students of engineering and मेडिकल कोर्सेज, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बुक भी दी जाती है। किसके लिए? स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशली इंजीनियरिंग एंड
मेडिकल, स्कॉलरशिप एंड पासेज ग्रांट्स फॉर हायर एजुकेशन एब्रॉड, और ये भी उनको पास भी दिया जाता है, सॉरी स्कॉलरशिप भी दिया जाता है प्लस पास भी दिया जाता है फॉर हायर एजुकेशन, जो कि बाहर जा कर के एजुकेशन ले सकें। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल फैसिलिटीज स्पेशली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उनके लिए हॉस्टल का भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, कई सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं, किसके लिए, स्पेशली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, जो गर्ल्स स्पेशली किसके लिए हॉस्टल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द एबव प्रोविजंस आर कॉमन टू बोथ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि बोथ सेम हैं दोनों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी। लॉन्चिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इन ट्राइबल एरियाज एंड ओपनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ फीमेल लिटरेसी इन दीज एरियाज, और भी लॉन्चिंग वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है ट्राइबल एरियाज़ में, और उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी ओपन किए जा रहे हैं, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, फीमेल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए। बाय टेकिंग दीज स्टेप्स ऑफ अपोजिट डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द सोसाइटी इज मेकिंग अमेंड्स फॉर द इनजस्टिस डन टू देम फॉर अ सेंचुरीज। ये जो लोग समाज उनके प्रति बहुत सालों से कई दशकों से अत्याचार करते आ रहे थे, अब क्या है, अब उनके लिए ये इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही हैं। इट इज़ द ओनली वे टू रीस्टोर देयर डिग्निटी, यह उनकी डिग्निटी शान को रीस्टोर करने का काम हो रहा है, फिर से उनके अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। एंड टू मेक देम ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल लाइफ एज इक्वल सिटीजन, और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, यानी सबको समान सा अधिकार, समान सा प्लेस देने की कोशिश की जा रही है। ओके, नाउ द शेड्यूल्ड कास्ट, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। This act was passed in 1989 in response to demands made by Dalits and the different tribal groups. ये एक्ट कब बनाया गया, ये ट्राइबल और दलित लोगों की डिमांड पर ये एक्ट बनाया गया। During the 1970s and 80s, various Dalit groups and tribal people refused to do their old age caste duties and demanded equal treatment as the powerful caste unleashed violence against them. अब क्या हुआ, 1870s और 80s के दशक में जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उन्होंने अपने पुराने जो चले आ रहे प्रथा यानी काम को करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। फिर उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, हमें भी इन लोगों की तरह बराबर का स्टेटस और समाज में हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए, जिसके लिए इन लोगों ने हम लोगों के लिए वायलेंस फैलाया था। द गवर्नमेंट वाज देन फोर्स्ड टू टेक सम कंक्रीट स्टेप टू ईज द सिचुएशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने पड़े थे। कीपिंग इन माइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन made in the fundamental rights, especially in the fundamental rights to equality, the government passed the so-called Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention Act 1989। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को बाई फोर्सली ये एक्ट पास करना पड़ा। The act contains a very long list of crimes committed against the members of the Scheduled Caste, Dalit and the Scheduled Tribes। और फिर इस एक्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, क्राइम की लिस्ट है, जो कि
जो कि इनके प्रति किया जाता था, किसके, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रति। देन इट सीक्स टू पनिश दोज हु कमिट सच क्राइम्स अगेंस्ट देम। फिर उनकी जो उनके साथ इस तरह के क्राइम्स करेगा, जो लिस्ट में दी हुई है उस तरह के अगर क्राइम करेगा तो उनको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। सम ऑफ इट्स मेन प्रोविजंस आर द फॉलोइंग। कुछ ऐसे प्रोविजंस है क्या क्या। It seeks to punish those who force a member of a scheduled caste and scheduled tribes to drink or eat any inedible or obnoxious substance। एक पहला क्या है, अगर कोई फोर्सफुली उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कुछ ऐसी चीज़ पीने पर मजबूर करता है या कुछ खाने पर मजबूर करता है तो भी उसको पनिशमेंट किया जाएगा, दिया जाएगा। इट सीक्स टू पनिश दोज हु फोर्सफुली, और उनको भी पनिशमेंट दिया जाएगा जो ऐसा करते हुए पाए गए। कैसा करते हुए पाए गए, रिमूव क्लोथ्स फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अगर कोई पाया जाता है कि एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के शरीर पर से अगर कोई कपड़े उतरवा देता है तो भी उसको पनिशमेंट मिलेगा। हिम और हर naked or with painted face or body or commits any similar act which is derogatory to human dignity। और ऐसा अपराध कभी कभी होता था पहले ज़माने में कि लोग उनको नंगा करके या फेस को पेंट करके पूरे रोड पर घुमाते थे। तो ये क्या है, ये सब इन सब चीज़ों को हटाने के लिए जो कि उनको अपमान का सामना ना करना पड़े। दिस एक्ट set out to punish anyone who wrongfully occupies or cultivates any land। और उनको भी सज़ा दी जाएगी। मान लीजिए कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो कि आप लैंड है वो कल्टीवेट करते हुए पाया गया, ठीक, जो कि गवर्नमेंट ने उसको अलॉट कर दिया हो, अलॉटेड बाय अ मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि जो लैंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अलॉट किया गया है, gets the land allotted to him transferred। It seeks to punish anyone who assaults or uses force on any woman belonging to a scheduled caste or scheduled tribes with an intention of to dishonor her। अगर कोई पाया गया कि किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की वुमेन के साथ दुर्व्यवहार करता हुआ पाया गया उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। This act also provides for special courts or the hearing of the above offence and for the relief and rehabilitation of the victims of the such offences। उनके लिए भी स्पेशल कोर्ट्स और हियरिंग की व्यवस्था की गई है। In fact, the letter and spirit of this act is that the Dalits lead a dignified life। यही देन है उनकी इस एक्ट का कि जो कि आज दलित और शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी शान की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि कितनी उनकी वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हर तरफ से उन्हें बेनिफिट है। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। हियर्स योर होमवर्क, डू एक्सरसाइज बी ऑफ चैप्टर 31। ओके बेटा, सो थैंक यू।